phosphorylation. Photophosphorylation is a concept which we were learning. Okay, जिसमें cyclic and non-cyclic photophosphorylation is what we have studied, right? कौन है ये? बुशरा, सोहम सोनवणे, डन. चलो हाथ नीचे करो. बुशरा, सानिका राजगोरे. Okay. So we have studied this cyclic and non-cyclic photophosphorylation, जिसमें splitting of water molecule will take place. So that's called as the light reaction. Light dependent reaction is what we commonly call it as. अभी इसमें क्या हो रहा है ना? Light dependent reaction में we need different photo systems. बराबर है? अलग-अलग photo systems लगते हैं PS1 and PS2. तो उसकी वजह से we have cyclic and non-cyclic pathways. Sir, please add me. ऐश्वर्या तू आली आहेस का ग? ते 01B3AA93 हा, ते नाव बदलत जा ग. ओके. खुशी, शीखू, खुशी इधर भी लेट आई क्या? चलो, सो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवेज ये हम लोगों ने देख लिया दोनों पाथवेज. देयर इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज केमियोस्मोसिस. नाउ केमियोस्मोसिस मतलब जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवे, उसी को कनेक्ट करते हुए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया है, दैट्स कॉल्ड एज द केमियोस्मोसिस. ऑस्मोसिस मतलब क्या? ऑस्मोसिस का मतलब आता है transfer of the molecule, water molecule, from the higher region of its higher concentration to the region of its lower concentration, right? So somewhere it is related to the concentration gradient. ठीक है, given by Dr. Peter Michel, इन्होंने दिया था. And what this chemiosmosis is? The chemiosmosis is basically movement of ions across a selectively permeable membrane down their electrochemical gradient, like osmosis. मतलब from the higher to the lower concentration. So that movement, when it takes place of certain ions across the membrane, then we call that as chemiosmosis. Okay, it was proposed in 1961 and the same person got Nobel Prize for the same in 1978. The name of the scientist is Dr. Peter Michel. राइट, अभी इन्होंने क्या कहा थोड़ा सा ध्यान दो, देखो, उसके बाद फिर हम लिखना है तो आप लिख सकते हो. कैसे वो आप लोग देख लो. नाउ दिस इज अ टिपिकल थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, करेक्ट. हम लोगों ने डायग्राम में भी निकाला था PS1 एंड PS2, that is photosystem 1 and photosystem 2. Different types of transport of electrons is taking place here. Along with the transport of electrons, it has the electron carriers. जैसे PS2 से PS1 की तरफ ये electrons are being carried here, right? So for example, PS2 पे when the light strikes, so the electron becomes high energy electron. The light is harvested by the light harvesting complex, then it enters in the core complex, and from there it goes to the what? कहाँ जाएगा? This will go where? Core complex, the reaction center. Perfect. Where in the reaction center the electron is released, carried by an enzyme known as CoQ, that is coenzyme Q. Coenzyme Q further transfers it to the क्या है ये? PQ stands for phyloquinone. Very good. Phyloquinone. From phyloquinone it is transported to the cytochrome B6 and F, and from here it is transported to the plastocyanin. Okay. Now this electron is released into the PS1, where again the light will strike, again the electron becomes active or high energy electron in the reaction center, and this high energy electron from the PS1 of the reaction center is carried by ferredoxin reducing substance, where this then transfers it to the ferredoxin in the presence of ferredoxin NADP reductase enzyme. जब ये एंजाइम काम करता है तो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस विल रिलीज व्हाट?
NADP, क्योंकि वो क्या बना रहा है, फेरिडॉक्सिन. So here NADP gets converted into NADP-2. Further this electron, अभी यहाँ पे क्या होता है ना, outside the membrane, meaning in the area which is outside the membrane, here it is will always have certain electrically charged chemical substances, like for example hydrogen ions. So there will be presence of hydrogen ions here. Okay, now because of this entire chemical reaction, the concentration of hydrogen ions inside is less and outside is more. So these hydrogen ions will start entering in the lumen. अब ये क्यों होता, कैसे होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा. लेकिन अभी इमेजिन करो that the concentration of ions inside is less and outside is more. So naturally the ions will travel from higher concentration to the lower concentration gradient. So that's the concentration gradient is what we have understood. जैसे ये protons add होना चालू हो जाएंगे, we know that the water molecule is also present, which is of course trapped in the thylakoid lumen only. So water molecule splits in the presence of light. तो naturally वो क्या release करेगा, very good, it will further release the hydrogen. तो यहाँ पे क्या हो गया ना, inside the lumen the amount of hydrogen ions or concentration of hydrogen is more, and the movement of the hydrogen starts taking place, but the hydrogen ions which have entered here, जो अंदर की तरफ है, they won't be able to be released out directly through the membrane. So what they do is that they start passing through this important structure known as ATP synthase. ATP synthase is like a turbine. ये एक ऐसा turbine होता है. Okay. So what happens? The movement of the hydrogen ion starts like this. ATP synthase से ये hydrogen ऐसे move होना चालू हो जाता है, and as the hydrogen ion starts moving, this turbine starts rotating. तो ये turbine ऐसा rotate होना चालू हो जाएगा. The moment turbine rotates, it converts ADP plus IP into ATP. मतलब ऐसे गोल घूमेगा, so that the ADP will be attached to one flap, IP will be attached to another, and then they start combining to form energy. मतलब movement of the protons have helped this ATP synthase to produce what? ATP. लेकिन बाहर की तरफ और भी हाइड्रोजन आयंस रहेंगे, उसमें से one of them or few of them will start getting combined with the NADP, क्योंकि हाइड्रोजन को NADP will act as a hydrogen carrier, right? Correct. तो फिर से यहाँ पे ATP बनना चालू हो गया, but then the hydrogen will be carried here by the NADP, where NADP gets converted into NADPH2, so 2 molecules of hydrogen. करेक्ट. तो मतलब वापस यहाँ पे क्या हो गया, इधर क्या बनना चालू हो गया, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनना चालू हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया. धीरे धीरे अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर से जैसे यहाँ पे भी वो जमा होना चालू हो जाएगा इस रीजन में, एंड देन अगेन इट एंटर्स थ्रू द मेम्ब्रेन, और वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चालू ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा. ओके, ये पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है आज. सो वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग यहाँ पे चालू ही रहेगा, तो जितना वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा उतना प्रोटॉन्स बनते जाएगा. गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ, सो दिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टेकिंग प्लेस ना, इसको हम लोग बोलते हैं केमियोस्मोसिस. और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, मीनिंग जो मैंने टरबाइन की बात की ना, सो दिस टरबाइन इज लिटरली लाइक दिस. तो ये पूरा ऐसा रहता है, एटीपी सिंथेज. तो सपोज यहाँ पे एक फ्लैप है और इधर एक फ्लैप है, तो ये ऐसे रोटेट होना चालू हो जाता है. And if this flap has ADP and this flap has IP, तो जैसे ही रोटेट होगा, यस, हाइड्रो पावर की तरह, करेक्ट, डैम में रहता है, तो जैसे ही रोटेट होना चालू हो जाएगा तो ये इसके नजदीक आएगा ना, तो ये कंबाइन होके इसके साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, ATP. और वो मूवमेंट कब होता है, ये मूवमेंट तभी होता है जब हाइड्रोजन पास होना चालू हो जाता है. प्रोटॉन्स विल स्टार्ट मूविंग थ्रू दिस, यू कैन से टरबाइन. ये वो सच में घूमता है, ओके, लाइक अ टरबाइन, लेकिन स्लो मूवमेंट रहता है उसका. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एज द प्रोटॉन ग्रेडियंट. समझ में आ रहा है?
तो जो हम लोगों ने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवे में देखा था कि दो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वन इज द एटीपी एंड द अदर वन इज NADPH2, करेक्ट। तो वो एटीपी कैसे बनता है? सो एटीपी विल बी सिंथेसाइज्ड लाइक दिस, ठीक, राइट। सो दिस इज योर केमियोस्मोसिस, ओके, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। यस, इट कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, लिविंग सेल्स में आपको ये दिखेगा, ओके। और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कम्स इज द डार्क रिएक्शन, which is also known as the turbinism. नॉट रियली उसका मोशन हम लोग डिटेक्ट कर ही पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट दिस द हाइपोथेसिस सेज दैट since the position of the ADP and IP is different, so it actually is moving like this, ऐसे गोल मूव होता है। so as I said ना, like a turbine, लेकिन टर्बाइन की तरह एकदम रैपिड मूवमेंट नहीं रहेगा, स्लो मूवमेंट रहेगा, ठीक है। हाँ, अभी केमी ऑस्मोसिस को कैसे लिखना है वो आप थोड़ा सा देख लो, या फिर बाद में वीडियो देखकर आप नोट्स बना लो, राइट, क्योंकि डिफिकल्ट है, क्योंकि पूरा डायग्राम से हमने समझाया है। चलो, यस sir, so which means there is like a reduction of NADP यस, when करेक्ट proton gets करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ल्यूमेन में इसका प्रोटॉन का भी कंट्रोल होना जरूरी है ना, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज अगेन देयर विल बी इम्बैलेंस, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का तो स्प्लिटिंग चालू ही रहेगा, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल, वाटर इज कंटिन्यूअसली गेटिंग एब्जॉर्ब, तो उसका स्प्लिटिंग तो चालू रहेगा, मतलब प्रोटॉन्स कंटिन्यूअसली बनते ही रहेंगे, हाइड्रोजन बनते ही रहेगा, तो उसका यूज भी तो होना चाहिए, इसके लिए NADP रिड्यूस होना चालू हो जाएगा, ठीक। yes sir. कौन सा फर्स्ट स्लाइड इशिता? गुप्ता जी की बेटी, कौन सा फर्स्ट स्लाइड रे ये? हो गया? हो गया? हेलो, अरे वो गुप्ता जी की बेटी, हाँ चल। Now the next important reaction is the light independent reaction, also known as the dark reaction, जिसमें आएगा सबसे पहला केमिकल साइकिल, दैट्स कॉल्ड एज द केल्विन साइकिल। क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, अभी दो प्रोडक्ट्स बने, कौन से? द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड हियर इज ATP, सेकंड प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड हियर इज NADPH2, जिसमें से मुझे चाहिए क्या? हाइड्रोजन और ATP चाहिए, तो ये जाएगा डार्क रिएक्शन में, जहां पे कौन बैठा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। रिडक्शन कौन कर रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज गेटिंग रिड्यूस। जब ये रिड्यूस होगा तो ये क्या बनाएगा? CH2O, लाइक यू नो C6H12O6। तो ऐसा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, CH2O, एंड इट इज इन मल्टीपल्स, यानी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन रहेगा तो हाइड्रोजन कितना रहेगा? 2। समझा? समझा? इसके लिए दिस इज द, हाँ, दिस इज CH2O इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, राइट। लेकिन ये पूरे रिएक्शन, यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, डार्क रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो आता है ना, दैट्स कॉल्ड एज द केल्विन साइकिल। नाउ व्हाट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन? इट इज नथिंग बट द फेज 2 ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक। अभी इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट, व्हाई? बिकॉज इट डजंट रिक्वायर लाइट एनर्जी, नॉट दैट इट विल टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम, but it's just that it doesn't require light energy, therefore it is known as light independent reaction. So do not require direct light or darkness की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, और लाइट की जरूरत नहीं है। So in the absence of light only this reaction will take place, so can also be known as the dark reaction. पहले साइंटिस्ट का ऐसा था that they believed that this reaction takes place during night time, इसके लिए उसको dark reaction नाम दिया था, but later on it was observed that this reaction doesn't require light.
Okay. Blackman's reaction is what we call this as, where ek don minute Umesh, where carbon dioxide combining with the NADPH2, as I said, reduction of the CO2 is taking place along with the energy, because reduction हो रहा है तो energy तो use होगा, तो जहां पे protons use हो रहे हैं वहां पे electrons use होगा, so naturally they are going to produce what, the glucose के साथ release होगा water as a byproduct, and most importantly NADP will be released along with the ADP and IP. करेक्ट, ठीक है, तो ये सब रिलीज होगा. अभी इसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है इन लाइट रिएक्शन. जो कहां से रिलीज हुआ, वाटर से. ये हम लोगों ने देखा है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ प्रोडक्ट फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसके एक्सपेरिमेंट्स भी हमने पढ़े थे. तो ये पूरे केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन कहीं नहीं आएगा. यस करेक्ट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ठीक, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन, इसको भी लिख के रखो. जस्ट गिव मी 2 minutes.
चलो चालू करते हैं, सॉरी। ओके, so let's see how this dark reaction and what are the different chemical reactions which they take place here. Kelvin cycle is the one which we are going to discuss. C3 and C4 pathway ऐसा हम लोग उसको बोलते हैं. We'll see how that reactions are. Now, grana is basically responsible for the light reaction, which is light dependent reaction, and the stroma is the region where the dark reaction will take place. ठीक है, which is also known as the light independent reaction. So either a dark reaction or a light independent reaction. Okay. Now there is one important cycle which we have known as the C3 cycle, or also called as Kelvin-Benson cycle. नाम Kelvin-Benson इसके लिए दिया है because the scientists who have discovered this cycle for the first time, which is can also be called as the Kelvin cycle. ठीक है, discovery took place in 1954, done by these two scientists, Dr. Melvin Kelvin and another scientist Dr. Benson. और उन्हीं के नाम से ये दिया गया केल्विन बेंसन साइकिल, एंड दे रिसीव्ड नोबेल प्राइज आल्सो इन द ईयर 1961 फॉर द सेम. ठीक, तो देखते हैं कि केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल होता क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज द C3 साइकिल. नाउ देयर इज अ पर्टिकुलर पाथवे व्हिच वी आर गोइंग टू फॉलो. जैसे इफ वी हैव कार्बन 12, ठीक है, C12 या फिर कार्बन 12 कंपाउंड होता है which is going to be a stable compound, whereas C14 is considered as the radioactive compound. And what they did was they discovered the entire pathway that of this C14 through the trace technique. ठीक है, ट्रेस टेक्निक, ट्रेसर टेक्निक से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का एक पाथवे डिस्कवर किया, एंड दैट इज हाउ द डिस्कवरी ऑफ द C3 साइकिल टुक प्लेस. क्योंकि अगर कार्बन 12 यानी C12 मॉलिक्यूल लेते हैं तो इट इज स्टेबल कंपाउंड, तो वो रिएक्शन में दिखेगा नहीं आपको. बट हियर सिंस इट वाज रेडियो एक्टिव C4 C14, तो इसी का यूज किया गया टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पाथवे ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन कि कैसे होता है. Now what they did was they took these organisms, that is chlorella and syndesmus नाम के दो organisms को लिया गया. Now these organisms got exposed to these tracer molecules, which is carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड में से C कार्बन जो था वो कैसा था, C14, so it is radioactive. So they were exposed to this particular, so they absorbed carbon dioxide which contained this tracer molecule. And then these organisms, chlorella and syndesmos, were put into the methanol. इनको methanol में डाल दिया गया. And then later on what they did was separation of intermediates by paper chromatography was done. जो भी intermediates था उनको paper chromatography से उन्होंने separate किया, so that what remained behind was the CO2, carbon dioxide containing, which contained this radioactive carbon dioxide containing compounds which had this radioactive carbon. And what was that carbon dioxide containing compound? The carbon dioxide containing compound was, or rather carbon containing compound was CH2O. ठीक है, and this was all done with the help of radio autography. ठीक, जो इंटरमीडिएट्स कौन से है वो कैसे पता चला, बाय क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि C14 इज रेडियो एक्टिव, रेस्ट आर नॉन रेडियो एक्टिव, तो उनको सेपरेट किया गया. फिर ये C14 का पाथ डिस्कवर किया गया, एंड इट वाज फाउंड दैट दिस C14 इज रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, दैट इज CH2O. And this is how the entire discovery of the C3 pathway has taken place. Intermediates आएगा बीच में, we are going to learn those intermediates गौरव, क्योंकि केमिकल रिएक्शन पढ़ना है अपने को. ओके, तो बहुत सारे हैं. ठीक, चलो देखते हैं. Now this is the flow of photosynthesis. कैसे होता है ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे. कौन सा लास्ट स्लाइड लोहिता, दिस वन. हो गया लोहिता? बड़बड़ लोहिता. हाँ, क्लोरेला वाला. इसमें क्या है लिखने जैसा, ये डन.
चलो अब ये नॉर्मल फ्लो कैसे होता है, तो जैसे पहला तो रिएक्शन आएगा आपका लाइट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द थाइलाकॉइड्स, करेक्ट, जहां पे क्या क्या यूटिलाइज हो रहा है, लाइट एनर्जी यूज हो रही है, एनएडीपी यूज हो रहा है, एडीपी along with the IP inorganic phosphate. In the presence of light, the water will split in such a way that it is going to produce NADPH plus ATP, and what is released here is the carbon dioxide, sorry, what is released here is the oxygen. Oxygen is released as a gas. यहां तक ठीक, ये तो अपने को पता है, yes or no? Yes. Yes, sir. गुड, अभी बचा कौन है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, द प्रोडक्ट यूज्ड वेयर NADP, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट along with the water, and product released are ATP, NADPH, that is NADPH2, and oxygen is released as a gas. Now this ATP and NADPH2 will enter in the dark reaction, तो कौन सी रिएक्शन में जाएगा वो, केल्विन साइकिल में जाएगा या फिर केल्विन रिएक्शन में जाएगा. And when it enters in the Kelvin reaction, in the presence of hydrogen, carbon dioxide will be reduced to sugar. तो NADPH2, NADPH2 से अगर यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है तो बचता कौन है, NADP, वो चला जाएगा. और फिर ये सारे केमिकल रिएक्शन में यूज क्या हो रहा है, ATP, तो ATP का क्या बनेगा, ADP प्लस IP, वो वापस जाएगा लाइट रिएक्शन में. सो अगेन इट इज टेकन टू द लाइट रिएक्शन. इफ यू रिमेंबर मैंने ये थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाया भी था फर्स्ट लेक्चर में कि कैसे सारे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस होते हैं. सो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा बाइफर्केशन करेंगे, सो दिस इज योर लाइट रिएक्शन, दिस इज योर डार्क रिएक्शन. Light reaction is taking place in the thylakoids, dark reaction is taking place in the stroma. और डार्क रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है कॉल्ड एज द केल्विन साइकिल. ठीक, तो हम लोग अभी ये पढ़ेंगे कि केल्विन साइकिल है क्या. So please show the last slide. या Yes, sir, done. क्या हो गया अमन, कर ले फटाफट चल. Yes, sir, done. डन, चल. So basically light independent reaction or the Kelvin cycle is what we need to understand, where it's a dark reaction, so naturally there will be reduction of the carbon dioxide to give rise to what, glucose, and it takes place within 90 seconds. मतलब one single chemical reaction needs 90 seconds. Within 90 seconds the entire chemical reaction will be completed. Okay, तो ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे. सो केल्विन साइकिल और C3 साइकिल. ना अभी इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं वो थोड़ा सा अभी पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस एंटायर साइकिल इज डिवाइडेड इनटू बाय एंड लार्ज 4 मेजर स्टेप्स. इसके 4 मेजर स्टेप्स आते हैं केल्विन बेंजल साइकिल और केल्विन साइकिल के. थोड़ा अभी ध्यान दो अच्छे से, ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू गुड टाइम टू राइट आल्सो. नाउ सबसे पहला जो आता है ना, दैट्स कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. कार्बोक्सिलेशन के बाद सेकंड रिएक्शन आता है, दैट्स कॉल्ड एज द रिडक्शन रिएक्शन. एंड द थर्ड रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. उसमें से थर्ड ए इज नोन एज सिंथेसिस. सिंथेसिस इसका होना है ग्लूकोज का, तो यहाँ पे ग्लूकोज सिंथेसिस होगा. और थर्ड बी जो आता है दैट इज रीजनरेशन, मतलब फिर से कोई एक पर्टिकुलर XYZ कंपाउंड बनने वाला है. कौन सा वो मैं अभी बोलता हूँ. तो 4 मेजर रिएक्शंस होते हैं. कौन कौन से, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, synthesis and regeneration. ठीक. Now with these 4 chemical reaction, how this entire process will be completed, let us try and understand this. Okay, चलो अभी ध्यान दो. कार्बोक्सिलेशन किसका हो रहा है. Now we have a compound here present in the plants called as RUBP. Stands for what? Rubisco. रूबिस्को अलग है, ये RUBP है. RUBP stands for राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, BIS, या फिर राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट.
ऐसा भी बोलते हैं उसको, विच इज हाउ मच कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड। इसके कितने मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने लिए हैं? द टोटल मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड हियर आर 6. Okay, now this chemical undergoes carboxylation reaction in the presence of carbon dioxide to give rise to a unstable compound called as keto acid. ओके, ये 5 कार्बन है, उसके साथ ये CO2 का एक कार्बन ऐड हो जाता है, तो कीटो एसिड जो बनता है वो 6 कार्बन बनता है। लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स बने? 6, क्योंकि 6 RUBP आर यूज्ड हियर अलोंग विद 6 CO2 मॉलिक्यूल्स। तो नेचुरली कितना यूज होगा, कितना फॉर्म होगा? कीटो एसिड 6 कार्बन विच इज अनस्टेबल। ठीक है, 6 molecules of unstable keto acid are formed. Now this entire reaction takes place in the presence of magnesium and an enzyme known as Rubisco. Rubisco stands for ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. CO stands for carboxylase oxygenase or ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. ठीक है, राइब्यूलोज, RIBULOS, ऐसा। ओके, समझ में आ रहा है? हेलो, चलो, लेकिन अब ये कंपाउंड जो बना है वो कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल कंपाउंड को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? स्टेबल कंपाउंड। सो इट फर्दर अंडरगोज केमिकल रिएक्शन टू गिव राइज टू 12 molecules of 3-PGA. मतलब इसका क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग हो रहा है। ओके, एंड दीज 3-PGAs आर 3 कार्बन कंपाउंड, और ये कितना है? 6 कार्बन। कीटो एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स है? 6। तो उससे अगर 3-PGA बनता है तो वो कितने आएंगे मॉलिक्यूल्स? 12, क्योंकि हाफ हो गया ना, तो हाफ हो गया मतलब 3-PGA डबल हो गया। 3-PGA स्टैंड्स फॉर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। Okay, it is called as 3 phosphoglyceric acid or 3 phosphoglycerate. Okay, this is basically phosphoglyceric acid और phosphoglycerate. समझा? तो ये बन गया आपका। Now this is again, this reaction will take place in the presence of magnesium. Now 3-PGA which is formed here from the unstable keto acid is basically the first stable compound, and because it is the first stable compound which is 3 carbon, therefore called as C3 cycle, that is carbon 3 cycle. Getting this? तो अभी ये केमिकल रिएक्शन में the first stable compound which is formed here is a 3 carbon compound called as phosphoglyceric acid. And because it forms the first stable compound as phosphoglyceric acid, therefore it is known as the C3 cycle. Is it clear? Yes. Yes, sir. अभी इसका फर्दर क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन होगा मतलब इसको कौन चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस है यहाँ पे अवेलेबल? NADPH2। करेक्ट, तो ये एनर्जी यूज करना चालू करेगा बिकॉज देयर आर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA, सो द 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इज यूज्ड अप हियर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज 12,1,3 डाई-PGA, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। पहला वाला कैसा था? फर्स्ट वाला वाज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब एक ही फॉस्फेट मॉलिक्यूल था। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे ऐड कितना मॉलिक्यूल हो गया? हर एक मॉलिक्यूल के लिए कितना ATP मतलब एनर्जी ऐड हो रहा है, फॉस्फेट ऐड हो रहा है? 12 ना। 12 मॉलिक्यूल के लिए 12 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग एडेड, तो सिंगल PGA का बन जाएगा डाई-PGA. So it will be known as 12,1,3 diphosphoglyceric acid, which is again a 3 carbon compound. Then it is going to get reduced in the presence of NADPH2. So naturally 12 molecules of di-PGA, so 12 molecules of NADPH2 लगेगा. And this hydrogen will be used up here for the reduction to form a compound called as 12 molecules of 3-PGAL.
ठीक है, तो ये क्या बना रहा है 3PgAl. अब PgAl इज व्हाट? PgAl इज फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. ओके, PgAl stands for what? Stands for phosphoglyceraldehyde. समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक मिनट. हाँ, ओके, यस, करेक्ट अमन. ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 3PgAl स्टैंड्स फॉर 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड. कितने मॉलिक्यूल्स बने इसके? 12. जिसके लिए क्या लगा? हाइड्रोजन. तो देखो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बन गया? NADP बन गया और ADP आ गया ना, along with the inorganic phosphate. अभी ये ADP, IP और NADP किधर जाएगा? Light reaction. Very good. So it will re-enter in the thylakoids to carry one more molecule of hydrogen. मतलब each NADP will carry one molecule of hydrogen. राइट लेकिन यहाँ पे अभी प्रोडक्ट बन गया, रिडक्शन का प्रोडक्ट बना है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgAl. लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट जो बनना है वो कौन सा है? दैट इज ग्लूकोज. वो अभी तक बना नहीं है. नाउ ये जो 3 पागल होते हैं PgAl, मैं पागल बोलता हूं उसको, तो ये जो 3 PgAl या फिर 3 पागल होते हैं, दे स्प्लिट एंड देन द 2 PgAl, मतलब 2 पागल एक साथ आ जाते हैं एंड 10 PgAl विल अंडरगो अनदर प्रोसेस. तो ये स्प्लिट हो जाता है जिसमें एक होगा 10 मॉलिक्यूल का पार्ट, एक होगा 2 मॉलिक्यूल्स का पार्ट. नाउ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl, 1 PgAl इज 3 कार्बन. बराबर है. तो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट द फर्दर रिडक्शन ऑफ दिस विल टेक प्लेस हियर वेयर दिस 3 carbon compound PgAl will further split into 2 molecules known as PgAl and DHAP. ओके, तो ये दोनों बन गए कौन? 1 पागल एक ढाप. What is DHAP? DHAP stands for dihydroxyacetone phosphate. Okay, it is known as what? Dihydroxyacetone phosphate. So 2 PgAl जो split separate हो गया है from these 12 molecules of PgAl will give rise to 1 molecule of PgAl and 1 molecule of DHAP. And then they will intermingle, interact with each other. जो एक दूसरे के साथ interact करेंगे to give rise to a compound known as fructose 1,6-diphosphate. तो पहले इनका स्प्लिटिंग होता है और फिर कॉम्बिनेशन होता है. करेक्ट, मतलब पूरा जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो उनका बदल जाता है. एंड चेंज इन केमिकल स्ट्रक्चर इज अ केमिकल रिएक्शन नोन एज व्हाट? जहां पे केमिकल स्ट्रक्चर बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? Isomerism. वेरी गुड, आइसोमराइजेशन. ठीक है, and then when this chemical structure changes it gives rise to a different compound known as fructose 1,6-diphosphate. क्योंकि दोनों कंबाइन हो गए ना, मतलब ये 3 कार्बन ये 3 कार्बन के साथ कंबाइन होकर उसने बना दिया 6 कार्बन कंपाउंड. राइट, अभी लेकिन अभी भी ग्लूकोज बना है क्या? नहीं. Now this fructose 1,6-diphosphate will further undergo chemical reaction where it releases 1 molecule of inorganic phosphate. तो आईपी को ये रिलीज कर देता है. जब ये आईपी को रिलीज करता है तो डाइफॉस्फेट का क्या बनेगा? सिर्फ 1 फॉस्फेट. तो फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट का बनेगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट एंड दिस फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय आइसोमराइजेशन. फिर से इसका आइसोमराइजेशन होगा और फिर से केमिकल स्ट्रक्चर बदलेगा एंड देन इट गिव्स राइज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में से फिर से कौन रिलीज हो जाएगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. एक ही बचा हुआ है ना 6-फॉस्फेट, मतलब एक ही फॉस्फेट है. बराबर, तो वो भी निकल गया. That is also released out, and since it is released out, so it will give rise to a compound known as glucose, which is a 6 carbon compound. ठीक, हेलो, हाँ. This chapter must be included in chemistry. वाह दीपंकर,
अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पे और एक बाकी है ना, सिंथेसिस तो हो गया, इधर क्या होगा, ये तो बाकी है ना, ये 10 पागल इधर बैठे, इनको क्या करेंगे, करेक्ट, so they are, yes correct, so they are useful for regeneration. तो regeneration में क्या होता है, 10 pgl will give rise to a compound known as erythrose, which is a 4 carbon compound. Erythrose further will give rise to another compound known as pseudoheptulose, which is 7 carbon compound. Hepto मतलब 7 I guess, right? So pseudoheptulose, pseudoheptulose will give rise to 6 RUMP, ribulose monophosphate, which is a 5 carbon compound, and monophosphate will give rise to 6 molecules of RUBP, जहां पे यूज क्या हो रहा है फिर से, ATP. Again, ATP is getting used up here for this entire chemical reaction. ठीक, समझा सबको? Yes. बहुत बहुत सारे नाम है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, आपके पास चॉइस नहीं है. Okay, so you have to remember all these names. Yes, So this all for making one molecule of glucose. yes, this all for making one molecule of glucose. और जिसके लिए टाइम कितना लगता है, 90 seconds. 90 seconds. yes, within 90 seconds this entire reaction will take place. ठीक, तो अभी आप लिखोगे कैसा, तो आप है ना हेडिंग दो C3 साइकिल, ऐसा मत लिखो जैसा यहाँ पे है, अलग अलग बना दो. पहले कार्बोक्सिलेशन लिखो, और कार्बोक्सिलेशन में ये वाला ऊपर का केमिकल रिएक्शन लिखो टिल 3 PGA, फिर रिडक्शन लिखो, रिडक्शन में 3 PGA को आगे लेकर जाओ टिल 10 PGL एंड वॉट एवर 2 PGL, 10 पागल और एक पागल, 2 पागल के बीच में. ओके, उसके बाद फिर सिंथेसिस वाला लिखो, जिसमें 2 PGL का होगा स्प्लिटिंग, तो PGL एंड DHAP, आइसोमराइजेशन होके बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज. तो ऐसा पूरा एक केमिकल रिएक्शन सिंथेसिस होगा, और रीजनरेशन में ये 10 PGL को लेकर जाओ ऊपर. ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, प्लस राइट डाउन दिस एंटायर केमिकल रिएक्शन वंस इन फ्रंट ऑफ मी ओनली. स्टार्ट राइटिंग. यस, 10 पागल को बाहर फेंक देंगे. देखो मीनल, पहला हेडिंग दो कार्बोक्सिलेशन. ओके, कार्बोक्सिलेशन. ठीक, कार्बोक्सिलेशन कहां से कहां तक लिखना है, आरयूबीपी से लेकर 3 PGA तक. फिर सेकंड दो रिडक्शन. रिडक्शन कहां से कहां तक लिखना है, रिडक्शन यू हैव टू राइट फ्रॉम 3 PGA टिल टिल व्हाट, कौन सा, बोलो जल्दी, टिल कहां तक, 3 PGAL. ओके, मॉलिक्यूल्स, उनका स्प्लिटिंग होके जो ढाप और पागल बनता है, 2 PGL का जो रिएक्शन है वो आपको लिखना है. और फोर्थ में यू हैव रीजनरेशन, और रीजनरेशन में 10 PGL वाला रिएक्शन लिखना है, 10 PGL टू RUBP. समझा मीनल, क्लियर? गुड, चलो फटाफट लिखो, आई एम गिविंग यू 3 minutes टाइम. So what is the full form of PGAL? PGAL is, I will write here, it is known as phosphoglyceraldehyde.
क्या हुआ लोहिता, क्या पूछ रही है तू? हाँ हाँ बराबर, 2 PGA to 3 PGA। गौरव, आयन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल ना बेटा, वो यहाँ पे ये रिएक्शंस में नहीं आएगा काम में कहीं। Sir, what is the full form of RUMP? आर यू MP. मोनोफॉस्फेट ना, Okay. this is monophosphate and ribulose biphosphate is RUBP. So will you please tell the full form of DHAP? Dihydroxyacetone phosphate. It is called as dihydroxyacetone phosphate. RUMP is ribulose monophosphate, Aditya. Finished? But that is Gaurav, that is in respiration beta, that is electron transport chain वाला reaction है, तो वहां पे ion use होता है, इधर नहीं होगा ना photosynthesis में. So what you are saying is right, but that is in respiration, वो आगे वाला चैप्टर है तो उसमें आएगा वो, जहां पे ग्लूकोज इज गेटिंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. लॉस्ट कनेक्शन. DHAP stands for dihydroxyacetone phosphate. Aman. Finished? Yes, sir. फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड इधर लिखा है देखो अमन. यस यस लोहिता लिखो.
अमर इधर साइड में लिखा हुआ है PgAl, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। यहाँ पे शायद ई है, एक बार स्पेलिंग देख लो, आई की जगह ई है क्या? फिनिश्ड। चलो जल्दी, अभी C4 भी पढ़ना है अपने को। ये तो सिर्फ C3 हो गया, C4 भी है। ओके, now further, so these are the molecules which are getting used here। ठीक है, तो इनका यूज हो रहा है 6 ATPs, 12 ATPs, 12 NADPH2, इस तरीके से यूज हो रहा है। उसमें से 12 ATP एंड 12 NADPs यूज्ड इन रिडक्शन, है ना। सिंथेसिस में, रीजनरेशन में 6 ATP यूज हो रहा है। एंड द प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड हियर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो यूज्ड। Okay, so these are all the compounds which are used, and the product which is found, final product formed here is the glucose। तो यहाँ पे ग्लूकोज बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। That's called as glycolytic reversal, right? ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है वो। Now next, Kelvin cycle का ये हो गया। Now C3 plants and photo respiration। Okay, what do we mean by photo respiration, and what and how these C3 plants are? So most of the plants are C3 plants। मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं वो सारे C3 प्लांट्स ही होते हैं, C4 नहीं होते। Why C3 plant? Because during the process of photosynthesis in dark reaction, the first stable compound which is formed here is the 3 carbon compound। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं C3 plants, ठीक। Now RUBP, carboxylase oxygenase, which is a very important enzyme called as Rubisco, required for this entire mechanism, है ना, जिसमें RUBP will get converted into first unstable compound, कीटो एसिड बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो बनेगा, तो उसके लिए Rubisco लगता है। and that is why, and since most of the plants show C3 reaction and Rubisco is required for the primary chemical reaction, therefore it is considered as the most abundant enzyme found in the world। तो ये एक important MCQ वाला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे ज्यादा रूबिस्को मिलता है हमारे सिस्टम में, वर्ल्ड में, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, इट इज थर्मोलेबाइल। ठीक है, थर्मोलेबाइल का मतलब क्या आता है? थर्मोलेबाइल मतलब something related to heat। लेबाइल का मतलब क्या आता है? लेबाइल, हेलो, सेंसिटिव टू टेम्परेचर। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, and if the temperature is more, then the rate of photosynthesis will reduce, if the temperature is less, then the rate of photosynthesis will also reduce। yes, correct Ishita। so the one which can get easily altered, तो वो बहुत सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर के साथ सेंसिटिव रहता है, ठीक है। so that is known as thermolabile। okay, so it will show dual activity, जैसे कार्बोक्सिलेज रिएक्शन होगा जिसमें CO2 will be used up, and oxygenase जिसमें कार्बोक्सिलेज जिसमें CO2 रिलीज होगा, ऑक्सीजनेज जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। तो दोनों भी एक्टिविटीज में रूबिस्को विल बी रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेज आल्सो एंड फॉर ऑक्सीजनेज आल्सो, राइट। सो अगेन इट विल एक्ट, इट विल बी लाइक अ कंपैरेटिव बाइंडिंग, ठीक है, एट एन एक्टिव साइट पे इट हेल्प्स इन बाइंडिंग द मॉलिक्यूल सो दैट द फर्दर केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। मतलब रिडक्शन की शुरुआत जो है वो इसी से होती है, अगर ये नहीं रहेगा तो फर्दर रिडक्शन विल नॉट टेक प्लेस एंड देन द ग्लूकोज विल नॉट बी फॉर्म, ठीक। सो ये रूबिस्को का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर व्हाट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इट इज द वन ऑफ द मोस्ट abundant compound or the enzyme found in the world, ठीक है। नाउ रूबिस्को ये जो कंपाउंड होता है ना, दिस नीड्स बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन उसको सफिशिएंट लगता है, देन ओनली दिस कंपाउंड विल वर्क। बट वी हैव सर्टेन कंडीशंस हियर, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन कंडीशंस like these where the temperature is, जैसे for example higher temperatures, high light intensity and even low carbon dioxide concentration।
So under such situation, whenever the conditions are like these, कौन से condition? High light intensity is there, higher temperatures are there, and if the concentration of the carbon dioxide is less, क्योंकि रूबिस्को के लिए क्या चाहिए? More carbon dioxide. लेकिन अभी condition बदल गया, and under such situation, then the chemical reaction takes place here, that is known as photorespiration. So photorespiration के लिए ये condition है, कौन सा? Photorespiration needs higher light intensity, higher temperatures, low carbon dioxide concentration. रूबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लगता है, लेकिन अभी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अगर एनवायरनमेंट में कम है, and light intensity is more and even the temperature is more. So under such situation, typical Kelvin cycle की जगह the plant will undergo an alternative chemical cycle where they will try to develop and restore, or rather restore the certain energy molecules called as the photorespiration. So ये alternative pathway, so it is known as photosynthetic carbon oxidation cycle. Alright, so it is also known as the photosynthetic carbon oxidation cycle. अभी इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि ये altered reaction की तरह होता है. Now during daytime, oxygen will be used here in the presence of RUBP. So the RUBP gets oxidized here to produce carbon dioxide instead of carbon dioxide getting carboxylated to oxygen. उल्टा होता है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम है, दैट इज व्हाई ये अल्टरनेटिव पाथवे आ गया. ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, डे टाइम में RUBP gets oxidized in the presence of oxygen to produce carbon dioxide instead of carbon dioxide getting carboxylated to produce oxygen. कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमने पहले पढ़ा ना C3 में, तो वो रिएक्शन नहीं होता है. इंस्टेड ऑफ दैट फोटो रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस. सो C3 विल बी रिप्लेस्ड बाय फोटो रेस्पिरेशन, एंड दैट इज ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, राइट? जैसे ही वो पीरियड चला गया, मतलब इफ द CO2 concentration increases, temperature comes down, light intensity comes down, again the C3 cycle will start, Kelvin cycle will start. Are you getting this? तो आपको ये सेंटेंस कैसा लिखना पड़ेगा? ये सेंटेंस you can write, during daytime RUBP gets oxidized to produce CO2 instead of getting CO2 getting carboxylated to produce oxygen. Sir, so like if RUBP is getting oxidized, so then the further reaction will not take place only, no? तो यहाँ पे पर्पस कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लूकोज बनाना है ही नहीं. Then it is because the temperature is not suitable for this ना entire reaction. डार्क रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है. So like photosynthesis will not take place here. So it will wait for that particular condition to recover. कंडीशन रिकवर हो गया तो वापस फोटो टिपिकल केल्विन साइकिल चालू हो जाएगा. Okay, yes sir. Yeah. So, हाँ, sir, so does it, I mean, use ATP? क्या? So for this photo respiratory Respiration. pathway, does it use ATP? Now it will definitely use ना, देखते हैं ना कैसे होता है, क्योंकि अभी क्या होता है ना, फिर then this get linked with the Kelvin cycle. Yes, sir. तो इसको हम लोग एक्चुअली ना वेस्टेड पाथवे भी बोलते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जरूरी होता है क्योंकि CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो डायरेक्ट रूबिस्को काम नहीं कर पाएगा. Yes, sir. एंड दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन डिफर्स. तो यहाँ पे डिफरेंसेस आना चालू हो जाते हैं. तो देखते हैं कि एनर्जी किस तरीके से अगर होता है यूज, तो हाउ इट इज यूज्ड, इफ नॉट देन व्हाई इट इज नॉट यूज्ड, उसका नीड है कि नहीं है. ठीक है, यस करेक्ट लोहिता. सो हियर देयर इज ओनली रेस्पिरेशन एंड नो फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस, मतलब ग्लूकोज नहीं फॉर्म हो रहा है. ओके, तो ग्लूकोज कैसे फॉर्म होगा? जब ये रिएक्शन कनेक्ट हो जाएगा केल्विन साइकिल के साथ, राइट? नाउ फोटो रेस्पिरेशन देयरफॉर इन्वॉल्व्स दिस पर्टिकुलर रीजन्स. तो इसके ना अलग अलग 3 डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके अंदर ये पूरा फोटो रेस्पिरेशन होता है. सबसे पहला आता है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद सेकंड ऑर्गेनेल कम्स दैट्स कॉल्ड एज द पेरोक्सिसोम, एंड द थर्ड ऑर्गेनेल कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया.
ओके देखते हैं कि ये कैसे होता है. नाउ वी हैव अ कंपाउंड व्हिच इज नेचुरली प्रेजेंट हियर कॉल्ड एज RUDP, राइबुलोज डाइफॉस्फेट, which is a 5 carbon compound which the plant has got through the Kelvin cycle. Now this will start getting, अभी इसको क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. O2 is used up here to produce PGA, phosphoglyceric acid, plus a 2 carbon compound called as phosphoglycolate. Correct? तो यहाँ पे in this particular chemical reaction what is being done here is the oxidation is taking place. ठीक है? So Rubisco will be used up here and then naturally the phosphoglycolate में से inorganic phosphate will be removed. मतलब phosphoglycolate का phosphate part निकल गया तो ये क्या बनाएगा, सिर्फ ग्लाइकोलेट. करेक्ट? तो यहाँ पे क्या बना है कंपाउंड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस बना फॉस्फोग्लाइकोलेट. Immediately the phosphate molecule will be released out, वो निकल जाएगा, it is lost, and then glycolate will be formed. This glycolate enters in the peroxisome. ये चला जाएगा peroxisome के अंदर, where inside the peroxisome this glycolate will further gets converted into glyoxylate, which is a 2 carbon compound along with the hydrogen peroxide H2O2. ठीक है? And this glyoxylate will further get converted into glycine. अभी किधर हो रहा है? This is taking place in the peroxisome. Glycine now enters in the mitochondria, and the two molecules of glycine will interact with each other to give rise to a compound called as serine, and along with that what they are releasing, that is carbon dioxide. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने यूज किसको किया, ऑक्सीजन को, इन्होंने रिलीज किसको किया, कार्बन डाइऑक्साइड को. सो इट इज लाइक रेस्पिरेशन ओनली ना. गेटिंग माय पॉइंट? हेलो. Yes, sir. हाँ, लेकिन ये क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज टेकिंग प्लेस, बिकॉज कंडीशंस आर नॉट सपोर्टिव फॉर द प्लांट्स टू डायरेक्टली अंडरगो केल्विन साइकिल. सो ये एक इंटरमीडिएट साइकिल बनना चालू हो जाएगा जो क्या करेगा, प्लांट को, प्लांट में से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बचाने की कोशिश करेगा. ठीक, अभी सेरिन विल री एंटर इन द पेरोक्सिसोम where serine gets converted into glycerate, that is 3 carbon compound. Glycerate enters in the chloroplast to give rise to a compound known as PGA, phosphoglyceric acid. Correct? तो इस तरीके से ये पूरा, and now again this PGA will enter where? This PGA will enter in the Kelvin cycle. फिर ये चला जाएगा Kelvin cycle के अंदर. ठीक है? So 2 molecules of PGA are formed here. So 2 RUDP make 3 PGA instead of 4, like seen in case of C3. 2 RUDP अगर यूज हो गए तो वो 3 PGA बनाएंगे, ना कि 4, क्योंकि C3A में जितना बनता है उसके एग्जैक्टली आधा बनता है ना. RUDP will give rise to RUDP, di by RUBP, RUDP same, ribulose diphosphate, ribulose bisphosphate. ओके तो उससे 3 PGA 4 PGA बनते हैं केल्विन साइकिल में. आप पेज पलट के देख लो चाहे तो, बट यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है सिर्फ 3 PGA. ठीक है, सो ये पूरा होता है. सो फ्रॉम 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स 1 कार्बन दैट इज 25% इज लॉस्ट, देन एज CO2 and 3 कार्बन दैट इज 75% आर रिकवर्ड एज PGA. समझ में आ रहा है आपको ये? हेलो, हेलो. Yes. हाँ, so that is why since this carbon is recovered as PGA, मतलब आप कार्बन को बचा रहे हो ना, because it is useful for Kelvin cycle. Correct? So that is how the entire reaction will take place. So this is known as photorespiration. ठीक, अभी इसको आपको exactly ऐसा का ऐसा ही लिखना है, no change in this. जैसे यहाँ पे वैसा ही लिखो. Sir, Yes. sir, in the
C3 cycle, I am not getting where is that 4 PGA. We have written 12 PGA, right? वो 12 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहा है ना डायरेक्ट इसके हाँ लिए। तो 12 के बाजू में 3 लिखा है ना? 3 कार्बन है बेटा वो। नो सर। पीजीए इज 3 कार्बन कंपाउंड ना, तो जो ब्रैकेट में जो लिखा है वो कार्बन का नंबर है, और प्रोडक्ट से पहले जो लिखा है दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Sir, so we have written 12 3 PGA in this way. करेक्ट। तो 12 3 पीजीए के कितने मॉलिक्यूल्स है? 12। यस। हाँ ऐसा है। और 3 पीजीए इज व्हाट कंपाउंड? इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। हाँ तो सर वो 4 कहाँ से आया फिर? कौन सा? ये इधर इट्स रिटन नो दैट 2 RUDP make 3 PGA instead of 4. So हाँ where is 4? बराबर है ना। तो अगर 6 आरयूबीपी रहेगा तो कितना पीजीए बनता है? 12. बराबर। तो 1 आरयूबीपी रहेगा तो कितना पीजीए बनेगा? अगर अगर 6 आरयूबीपी है तो वो कितना बना रहा है? 12। तो 1 आरयूबीपी रहेगा तो कितना बनाएगा? 2. 2। मतलब 2 आरयूबीपी रहेगा तो कितना बनाना चाहिए? Okay, got it, got it. समझा? Yes sir, thank you. गुड। लिखो। So, sir, this we are only talking about C3 plants, right? Yes. And Yes. C3 plant, that too photo respiration only when the conditions are like high temperature, bright light, higher And oxygen content concentration and of- lower carbon dioxide. Yes, Yes. correct. अगर ये कंडीशन रहा तो ही ये फोटो रेस्पिरेशन होता है, अदरवाइज केल्विन साइकिल विल कंटिन्यू। Yes, sir. So therefore it is known as something like wasteful process. यस यस करेक्ट। तो इसके लिए उसको वेस्टेड प्रोसेस ऐसा भी बोलते हैं। Sir, so it is not compulsory, right? No, Means it is only not the compulsory. conditions are Only right. yes, only under certain conditions it will take place. Otherwise, the regular normal reactions will take place. Yes, sir. Yes, खुशी, it is quite confusing. उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, डोंट वरी।
चलो हो गया. क्या है लोहिता डन सर, खुशी डन सर. सर इट इज द सेम serine with, yes Gaurav, it is the same serine with hydroxyl groups. चालू करें आगे का. चलो नेक्स्ट. तो ये तो हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द फोटो रेस्पिरेशन. ओके, so photorespiration therefore protects the C3 plant from photo oxidative damage because of excess oxygen. जो भी, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट. ओके चलो. So photorespiration will always protect the C3 plants from the photo-oxidative damage. ठीक है. So plants को damage नहीं होना चाहिए photo oxidation से because oxygen content is high and carbon dioxide content is less. इसके लिए photorespiration होता है instead of direct Kelvin cycle. Fine. तो ये हो गया हमारा C3 plants का typical photorespiration and C3 cycle और Kelvin cycle. Then comes the next important cycle that's called as the C4 plants or other type of plants known as the C4 plants and their cycle, that is C4 cycle. तो वो भी कैसे होता है, उनमें कौन कौन से structures involved होते हैं, how that entire chemical reaction takes place, that we need to understand. Now what do we mean by C4 plant or C4 pathway? So C4 plants are certain tropical plants. And these tropical plants will show an alternative pathway when there is low carbon dioxide level. CO2 level जब low रहते हैं, so they do not they will not directly absorb, since CO2 is less here, so it is not directly absorbed by Rubisco. ठीक है? And because it is not directly absorbed by Rubisco, so naturally before the 3 carbon compound is formed, a first stable compound will be formed. क्योंकि CO2 concentration कम है, तो रुबिस्को CO2 को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएगा, तो यूज नहीं करेगा तो 3 कार्बन कंपाउंड नहीं बनेगा, पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा which is going to be a stable compound. So the first stable compound which is formed in this reaction is oxaloacetate, which is what? Which is a 4 carbon compound. And because oxaloacetate is a 4 carbon compound, therefore we call this as
C4 cycle or also known as dicarboxylic acid cycle. Correct? क्यों? क्योंकि the compound which is formed here, the first stable compound formed here is the oxalacetate and not the one which is formed during Kelvin cycle. Kelvin cycle में जो पहला stable compound बनता है वो कौन सा होता है? बोलो. फॉस्फो क्या होता है? PGA compound. हाँ, 3-phosphoglycerate और 3-phosphoglyceric acid. ओके, सो दैट इज फॉर्म्ड देयर. तो ये पहले वो नहीं बनेगा, पहले ये बनेगा, oxalacetate बनेगा, because the conditions are given here where the concentration concentration is less, it is low. Now C4 plants का एग्जांपल अगर देते हो तो जैसे amaranthus करके एक आता है, या फिर मेज में ये होता है, या फिर शुगर केन में होता है, ज्वार में होता है. इनफैक्ट इसका C4 प्लांट का डिस्कवरी शुगर केन में हुआ है. ठीक है, सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज द C4 प्लांट्स. लास्ट स्लाइड, गुप्ता जी की बेटी को लास्ट स्लाइड. डन, चलो गुड. तो ये एग्जांपल से C4 प्लांट्स के इसके लिख के रखो. सोरगम करके एक आता है ना, उसमें भी है. लास्ट स्लाइड, अमन लिख जल्दी. डन अमन. Yes, Sir, sir. so the rest of the cycle will remain same, just one additional step will be there here. नहीं, लेकिन उसमें फिर अगर एक एडिशनल स्टेप हो गया, इसका मतलब उनका जो क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल एनाटॉमी भी थोड़ा सा अलग होता है ये प्लांट्स का, तो इसके लिए वो साइकिल थोड़े से बदलते जाते हैं. ओके, तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दोस एनाटॉमिकल चेंजेस. जैसे नॉर्मल प्लांट में टिपिकल पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल ऐसा होता है ना, तो इनमें वो टिपिकल वैसा नहीं रहता है. सो देयर इज स्लाइट स्ट्रक्चरल चेंज. तो इनमें बीच में आता है बंडल शीथ सेल्स. Correct. Instead of having typical palisade mesophyll, they will have bundle sheath cells which are present around the you can say vascular bundles. तो structure बदल जाता है इनका. But C4 plants का जो रहता है ना मैकेनिज्म, वो थोड़ा सा ये plants में थोड़ा सा अलग रहेगा. But the product which is formed finally is going to remain the same. That is that is the glucose. तो वो glucose तो बनते ही रहेगा. ठीक, तो देखते हैं ना कि कैसे होता है ये. Yes, sir. या सो नेचुरली, क्योंकि अभी हाँ गौरव, ये अभी थोड़ा सा हम लोग एंड में जाएंगे तो बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी बताऊंगा तो थोड़ा मजा नहीं आएगा. देखते हैं कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन. बट व्हाट यू आर सेइंग इज राइट गौरव. मैं जानबूझ के रीड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड कि ये क्या होता है साइकिल, एंड देन वी विल कंपेयर. ठीक गौरव, चलो. Now, in 1965, H.P. Kortschak and had basically understood or found out this alternative method for carbon dioxide fixation, and he discovered that in sugarcane for the first time. And in 1970, M.D. Hatch and C.R. Slake, ये scientists ने they outlined the entire series of reaction. Kortschak ने पहले डिस्कवर किया और 5 साल के बाद ये दोनों ने उसको आउटलाइन किया. ठीक है, एंड देयरफॉर दिस पाथ इज आल्सो नोन एज C4 पाथवे और HSK पाथवे. HSK स्टैंड्स फॉर Hatch and Slake पाथवे. ठीक है, उन्होंने उसको आउटलाइन किया करके उन्होंने अपने ही नाम से वो पाथवे का नाम दे दिया. ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज ए Hatch and Slake पाथवे. लेट अस सी कि ये है क्या. जैसा मैंने बताया ना कि फॉर दिस एंटायर केमिकल रिएक्शन द स्ट्रक्चर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज द एनाटॉमी ऑफ द leaves of C4 plant is slightly different from that of the C3 plants. थोड़ा सा अलग होता है इनका एनाटॉमी, इसके लिए केमिकल रिएक्शंस भी थोड़े से अलग रहेंगे. अभी क्या डिफरेंस आता है, ये लीव्स में एग्जैक्टली होता क्या है. सो क्रेन्स एनाटॉमी इज लाइक, यू नो, क्रेन्स का मतलब आता है लाइक अ नेकलेस, तो ये ऐसे दिखता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर. सो वी विल फाइंड आउट कि ये एग्जैक्टली है क्या. सो इट अपीयर्स लाइक दिस.
ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा एनाटॉमी में द स्ट्रक्चर विल अपीयर लाइक दिस. नाउ द टिपिकल मेसोफिल सेल्स फाउंड इन द C3 लीफ, ऐसा भी नहीं ये C3 लीफ का है, तो C3 प्लांट्स में वी हैव पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल. बीच में जो VB लिखा हुआ है दैट इज वेस्कुलर बंडल, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम व्हिच इज प्रेजेंट हियर इन दिस रीजन. तो ये वाला जाइलम एंड फ्लोएम का रीजन है. दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एनी C3 प्लांट or C3 leaf. Whereas in case of C4 leaf, the structure is slightly different, as you can see here. ठीक है, तो C4 plants will have the vascular bundles, but there is no palisade mesophyll. So it has only these cells. यहाँ पे आजू बाजू में ना vascular bundle के आजू बाजू में एक cells bunch of cells मिल रहा है. Doesn't have typical palisade and spongy mesophyll. Instead, it is known as homogeneous mesophyll. मतलब सारे मेसोफिल सेल कैसे होते हैं, सेम होते हैं. ओके, now and the additional structure which we have is the appearance of the bundle shape. So the small granule chloroplast with PEP carboxylase as a compound or as an enzyme present and less of stroma. ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. More in number, this particular compound, these structures are going to be more in number, and at the same time, if you see, it is another most important structure called as the bundle sheath cells. So it contains these typical bundle sheath cells, which are present around the vascular bundle. So they will have bigger granular chloroplast with rubisco and only stroma. मतलब मेसोफिल सेल में ग्रैन्युलर क्लोरोप्लास्ट था, यहाँ पे अग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट है. ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट था कैसा है, ये वाला जो है ना, ये सेल जो है होमोजेनियस मेसोफिल सेल, इसमें ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट है, मतलब ग्रैना ज्यादा है और स्ट्रोमा कम है. और बिकॉज इट हैज मोर ग्रैना एंड लेस स्ट्रोमा एंड इट हैज PEP कार्बोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम रहता है. एंड दीज सेल्स आर मोर इन नंबर, ये सेल का नंबर ज्यादा होता है, तो डायग्राम में भी आपको दिखेगा. Whereas bundle sheath का कैसा होता है, तो bundle sheath were present around the vascular bundle and they will have bigger agranal chloroplast. मतलब ग्राना कम रहते हैं, स्ट्रोमा ज्यादा रहता है, मतलब there is only stroma, no grana. And because it has stroma, so it contains RU rubisco as a enzyme. ठीक है, and of course these bundle sheath cells are less in number, but where they are present around the vascular bundle. Crane's anatomy समझ में आ रहा है? So अब इसको ड्रॉ करना है आपको, लाइन डायग्राम की तरह ड्रॉ करो. sir, so the peptidase enzyme will be absent in this bundle sheath. कौन सा एंजाइम? Peptidase enzyme. हाँ, तो वो वहां पे नहीं रहेगा ना, वो रहेगा सिर्फ आपके होमोजेनियस सेल्स में. Yes, sir. अच्छा, ये जो PEP होता है ना, कोई तो भी मुझे पूछ रहा है PEP. हाँ, सोम ने पूछा. इट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. यस, करेक्ट गौरव. इन स्टोमाटा 2. स्टोमाटा मतलब गार्ड सेल्स. हाँ, ये डायग्राम का नाम है क्रेन्स एनाटॉमी, KRENZ, क्रेन्स एनाटॉमी. आएगा, पेप का यूजेस आएगा, पेप कार्बोक्सिलेज रिएक्शन देखना है अपने को. खुशी. यस, करेक्ट गौरव. सब लोग आगे भाग रहे हैं. डन. हाँ, Please show the last slide. अभी मैं सोचूं कि इतना सब फटाफट आंसर क्यों आ रहा है. यस,
Sir, please show the last slide for a second. कौन सा लास्ट स्लाइड? ये तो C3 का है. Okay, sir. Done. ये वाला डायग्राम थोड़ा सा लाइन डायग्राम निकाल के रखो. हाँ, गोले निकालने का. ये हो गया लिखे. These are the properties of mesophyll cells. ये mesophyll cell का characters है. Small granule chloroplast with PEP carboxylase enzyme and less stroma. होता है लेकिन कम होता है. और इधर क्या होगा? बंडल शीथ सेल्स में there is no stroma, only stroma, no grana. Done? Yes, sir. Done. खुशी, क्योंकि C3 का एनाटॉमी ही अलग है ना बेटा. यहाँ पे एनाटॉमी ही बदल गया ना, इसके लिए there is change or need for some different enzymes also. Yeah? हाँ, ठीक है. So this is called as a dimorphic chloroplast. मतलब दो अलग अलग है ना. मतलब बंडल शीथ में एक अलग टाइप का क्लोरोप्लास्ट है और होमोजीनियस मेसोफिल सेल्स में भी अलग टाइप का क्लोरोप्लास्ट है. इसके लिए उसको बोलते हैं डायमॉर्फिक. डाय मतलब टू, मॉर्फोस मतलब स्ट्रक्चर्स. क्लोरोप्लास्ट हैविंग टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसके लिए डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. So this is how C4 leaf will look like under the microscope. So this is mesophyll cells. ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है that is your बंडल शीथ, और उसके बीच में होता है, क्या रहेगा इधर? वैस्कुलर बंडल्स. यस, करेक्ट. चलो अभी देखते हैं C4 पाथवे. C4 पाथवे क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं. Now C4 साइकिल या फिर C4 पाथवे में ना, as I said, the structural change is there, anatomical changes are there. So naturally mesophyll or cells will be present here in the chloroplast, which is called as the having chloroplast, which is granule chloroplast, and we have these bundle sheath cells which has the chloroplast which is a granule. ठीक. Now we have this PEP enzyme which combines with the carbon dioxide to give rise to H2O plus PEPcase. Okay, so PEP stands for what? Phosphoenol pyruvate case. Yes, ऐसा एक middle intermediate compound बनेगा in the presence of H2O and PEPcase. या फिर जैसे enzyme है, PEPcase is like an enzyme. So it basically PEP, that is PEP combines with the carbon dioxide to give rise to oxaloacetic acid, OAA. Okay, तो ये क्या बनाएगा? This is going to synthesize a very important compound here that's called as the oxaloacetic acid, known as OAA, or you can say oxaloacetate also. And then it's going to release what? H3PO4. What is H3PO4? Phosphoric acid. So it starts releasing the phosphoric acid here, right? Now, further, हाइड्रोजन विल बी यूज्ड हियर. हाइड्रोजन यूज हो रहा है मतलब ऑक्सैलोएसिटेट का क्या हो रहा है? Yes, oxaloacetate is getting reduced here. Yes, it's getting reduced here. और इसका रिडक्शन होगा तो वो बनाएगा एक कंपाउंड कॉल्ड एज मैलिक एसिड, which is again a 4 carbon compound. अच्छा, ये किधर हो रहा है रे? ये हो रहा है मेसोफिल सेल्स में. मेसोफिल सेल्स में हो रहा है क्योंकि मेसोफिल सेल्स हैज ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट which contains the PEP compound. करेक्ट. तो मैलिक एसिड बनेगा और मैलिक एसिड कैन अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेज कैन अगेन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑक्सैलोएसिटेट. ठीक है, इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स है ये. एंड ऑक्सैलोएसिटेट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसअमाइनेज. अगर एक्सेस रहेगा तो, if it is in excess oxaloacetate, then it will get converted into transaminase aspartic acid in the presence of transaminase, where it's going to release a compound known as ammonia. तो यहाँ पे NH3, that is ammonia, will start getting released. ठीक.
इंटरचेंजेबल कंपाउंड है, ऑक्सैल एसीटेट एंड मैलिक एसिड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये केमिकल रिएक्शन चालू रहेगा। मतलब आगे चल के मैलिक एसिड के बाद आगे चल के अगर वो बंडल शीट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इट अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैल एसीटेट टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सैल एसीटेट इन द प्लांट सेल्स। ट्रांसअमाइनेज विल वर्क ऑन द एक्सेस टू प्रोड्यूस एस्पार्टिक एसिड और वो NH3 एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करना चालू कर देगा, ठीक है। एंड देन अगेन एस्पार्टिक एसिड विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू मैलिक एसिड where one more molecule of NH3 will be released. NH3 stands for what? Ammonia. Ammonia. So ammonia will be released, ठीक। Now the malic acid which is synthesized here, which is the final product of the mesophyll cells, will transport itself, will get transported to the bundle sheath cells, which is a granule chloroplast, and this has what? Rubisco ना, इसके अंदर होता है Rubisco. So malic acid का फिर से यहाँ पे like you know NADP like will start getting reduced here. So in the presence of malate dehydrogenase, malic acid will give rise to a compound, and that compound is known as a pyruvic acid, which is a 3-carbon compound, and then it releases a byproduct called as the carbon dioxide, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, मैलिक एसिड में से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। एंड देन वी हैव RUBP, राइबुलोस बिसफॉस्फेट एज अ कंपाउंड। दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2PGA, that is 2 molecules of phosphoglyceric acid, and then this PGA enters into the Kelvin cycle. तो ये चला गया केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल में जाएगा तो नेचुरली वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, करेक्ट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना है, दैट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज नोन एज पायरुविक एसिड। एंड ऑफ कोर्स केल्विन साइकिल से फिर से वो साइक्लिकल फॉर्म, जो टिपिकल केल्विन साइकिल का साइक्लिकल फॉर्म हमने देखा था RUBP वाला, है ना, सिंथेसिस का एक पार्ट था, और दूसरा कौन सा था? सिंथेसिस एक था ना, और दूसरा कौन सा था? केमिकल रिएक्शन, थर्ड A, दैट इज रीजनरेशन, है ना। So Kelvin cycle में regeneration of RUBP will also take place. So 2 molecules of PGA will form carbohydrates, 10 molecules will form, regenerate to form, they will undergo regeneration reaction to form RUBP. So ये बंडल शीट में हो रहा है पूरा रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? मैलिक एसिड का हो गया, मैलिक एसिड इज इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेज गॉट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और ये केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट रिलीज हुआ है वो CO2, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। तो ये जो CO2 रिलीज हुआ है, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन द बंडल शीथ सेल्स इन द क्लोरोप्लास्ट टू कन्वर्ट RUBP इनटू 2PGA। डू यू रिमेंबर C3 में भी ऐसे ही हुआ था? याद है ना तुम लोगों को? Yes, C3 sir. साइकिल, तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था। तो ये CO2 यहाँ पे बंडल शीट में आया कहां से? फ्रॉम द मैलिक एसिड, ठीक। सो ये हो गया आपका टिपिकल रिएक्शन, एंड देन पायरुविक एसिड अगेन गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू द व्हाट? मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल में चला जाएगा, वेयर दिस पायरुविक एसिड विल यूटिलाइज एनर्जी टू प्रोड्यूस PEP कंपाउंड, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक्चुअली ना एक एंजाइम भी यूज होता है, इधर पायरुविक एसिड का जब पेप बनता है ना, तो वहां पे एक एंजाइम भी यूज होता है, रिलीज होता है, और अदर यूज होता है, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। मैलिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट, मतलब क्या बेटा? मैलिक एसिड तो बन रहा है ना ऑक्सैल एसीटेट से। हाँ, यू कैन से इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पेप, पेप कंपाउंड अगर नहीं रहेगा तो ये पूरा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, खुशी। सो दैट्स द डिसऑर्डर ना, तो वो बीमारी हो गया। लेकिन मैलिक एसिड तो बन रहा है, तो मैलिक एसिड नहीं होगा ये बोलना मुश्किल है, ठीक खुशी? हाँ,
चलो लिख रहे हैं क्या सब लोग ये? हेलो, Yes, sir, writing. लिखो लिखो. ठीक. सो यहाँ पे पेप रहता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट will combine with the atmospheric carbon dioxide in the presence of pep carboxylase. pep किस नाम दिया उसको? तो pep carboxylase enzyme along with the water to produce oxalacetic acid and H3PO4. Oxalacetic acid can also be written as oxalacetate. ऐसा भी आप उसको लिख सकते हो. ठीक. I know it's very complex, दीपंकर, लेकिन कुछ टेंशन मत लेना, याद रह जाता है बाद में. The more you read, the more you go through, you will tend to remember it. Don't worry. Yes, you have to revise it again and again. मैलिक एसिड का खुशी वहां पे कोई यूज ही नहीं है ना. मैलिक एसिड इज बेसिकली अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन which then further gets splits or breaks down in the presence of malate dehydrogenase ना, तो पायरुविक एसिड बनेगा और तभी CO2 रिलीज होता है. तो यहाँ पे प्लांट को मैलिक एसिड का कोई यूज नहीं है, बाय प्रोडक्ट है ही नहीं ना. मैलिक एसिड इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट, CO2 इज अ बाय प्रोडक्ट. क्योंकि मैलिक एसिड से देखो ना, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन ना. करेक्ट. फिनिश्ड. जिनका हो गया वो लोग जा सकते हैं. आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर हियर नाउ. Thank you, sir. Bye. बाय बाय. Bye, sir. बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. निशिता, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द मैलिक एसिड and then this malic acid in the presence of malate dehydrogenase gets converted into pyruvic acid. और जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड एज द कार्बन डाइऑक्साइड. एंड CO2 इज एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ RuBP इनटू 2PGA. तब तक PGA नहीं बनेगा जब तक CO2 नहीं रहेगा. मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट में किसका यूज बोल रहे हैं आप? मैलेट का, मैलिक एसिड का ना. सो तो डायरेक्ट कंपाउंड फॉर्म हुआ है ना बेटा. मैलेट डिहाइड्रोजिनेज वहां पे बनता ही नहीं है ना मेसोफिल सेल्स में, तो उसकी जरूरत है ही नहीं. इट इज रिक्वायर्ड ओनली इन द बंडल शीथ सेल्स. और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, या आई मीन दिस हियर इट इज ऑक्सैलासिटेट है ना. ऑक्सैलासिटेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, and if the amount of malic acid is more or further reaction is not taking place, then it can rearrange, मतलब इसका restructuring होके it can get converted into oxalacetic acid. So they are basically interchangeable products, मतलब वो एक दूसरे में एक दूसरे के साथ चेंज होते रहते हैं. तो ऑक्सैलासिटिक एसिड का मैलिक एसिड बनेगा तो हाइड्रोजन विल बी यूज्ड, मतलब रिडक्शन होगा
और वही मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक बढ़ेगा तो फॉर दैट इट रिक्वायर्स मैलेट डिहाइड्रोजिनेज. So interchangeable products is what we commonly call it as. Right, Nishida? हाँ. चलो, bye bye. See you. Thank you. तो आगे का रिएक्शन ही नहीं होगा खुशी, अगर हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो पाया तो. ठीक, तो बंद ही हो जाएगा ना. अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ योर डिसीज. चलो, सी यू, बाय बाय. नेक्स्ट टाइम कर दे, फ्राइडे को कर दे डिस्कस, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेंगे तो. रिवाइज.